Fifth question that I am going to discuss with you is what is the number of molecules in 0.25 moles of nitrogen gas. In the previous video, we have derived formula for number of moles and how can you calculate the relationship actually between number of moles and Avogadro number, we know very well. और अगर आपको number of moles मालूम करने या पता है आपको, तो आप फिर number of particles कैसे मालूम करें, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं. और मास के भी कंटेक्स्ट में हमने, मास के टर्म्स में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड 4 न्यूमेरिकल्स. सो दिस इज द फिफ्थ वन, राइट. और बहुत सिंपल है, देखिए. इट इज़ ऑल ऑन यू कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो one thing that we know is 0.25 moles, we have number of moles given. Or if you remember the formula, n is equal to what? Number of particles, here they are molecules, divided by Avogadro number, n naught. ठीक. तो वही formula use करते करते first of all the things that we are knowing number of moles, 0.25 moles are present, and n naught, we know the value of n naught, 6.022 into 10 raised to the power 23. Here we know that this is 6.022 into 10 raised to the power 23 number of nitrogen molecules, nitrogen gas, because we know nitrogen exists in diatomic form. कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. जब हम एटॉमिसिटी पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. ठीक. तो just put the formula, and n obviously is not known, question mark, n divided by n naught. तो ये कितना हो जाएगा आपका? You are going to write, I am going to write in the next step. Just a minute. 0.25 is equal to n upon 6.022 into 10 raised to the power 23. Okay. n हमने इस साइड पे रखा. दिस मीन्स n इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वी विल गेट 1. देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी इसमें. 1.505 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23. तो ये n इज इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं? इतने. देखिए, अगर वैल्यू आपने बहुत, ये ओरली भी हो सकता था, बट आपको ऑब्वियसली पेपर में इस तरह से आंसर नहीं करना है. अगर एमसीक्यूज है तो वेल एंड गुड, आप अपना आंसर कर सकते हैं, बट ऑलवेज पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला टू क्रॉस चेक, है ना, टू बी डबली श्योर के वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो देखिए 0.25 वैसे आप देखिए कितना है. 1 मोल में जब 6.022 पार्टिकल्स हैं, 22 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, तो 0.25 इज जस्ट 1/4 ऑफ व्हाट? 1. तो 6.022 को अगर आप ऐसे ही 4 से डिवाइड 1/4 कर देते तो यू विल हैव दिस वैल्यू. ओके. वरना आप डेसिमल हटाएंगे तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? अल्टीमेटली 1/4. सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So the sixth question is calculate the mass of 3.011 into 10 raised to the power 25 molecules of nitrogen gas. इसमें जल्दी से देखिए. Number of molecules means number of particles are given to you, which is what? 3.011. अब what you need to calculate is the mass. Okay, you need to calculate mass. If you remember that in the previous video, again I am referring to the previous video. We came to one conclusion that n means number of moles is equal to what? Given mass divided by molar mass. Do you remember? Given mass divided by molar mass. And n is also equal to one more thing, which is what? Number of particles divided by Avogadro number. And we relate these two equations, we compare these two equations, because n is equal, isn't it? Is equal to this thing on the right side. तो हमने क्या किया था?
दिस मीन्स m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट. इतना ये दिख रहा है? यस, इट्स क्लियर. सो हमने क्या देखा था? m अपॉन m, स्मॉल m मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ, हियर देर आर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर, है ना. और एवोगैड्रो नंबर भी क्या बताया, यानी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हम ये क्वेश्चन पुट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वी आर नोइंग राइट नाउ? we have the values that are, you know, given to us like n. Okay, number of molecules are given to us, which is what, 3.011 into 10 raised to the power 25. One thing, we know the value of n naught also, which is 6.022 into 10 raised to the power 23, है ना. ये हमें दो चीजें पता हैं. एंड वी कैन ऑल्सो नो वन मोर थिंग, विच इज मोलर मास. यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है, मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं. कंडीशन प्रोवाइडेड दैट यू शुड नो अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. एंड यू शुड नो वन मोर थिंग, जो नाइट्रोजन ही मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, दैट नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन गैस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. हो सकता है आपको एग्जाम में N2 ही साफ स्पेसिफाई कर दिया जाए, सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड. So we can calculate molar mass of nitrogen N2. There are 2 atoms of nitrogen multiplied by atomic mass of nitrogen, which is 14. Okay, बस इसमें फर्क क्या होगा, ग्राम पर मोल हो गया. Okay, so 28 ग्राम पर मोल, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 28 ग्राम. इतना ही समझ में आ गया. अब हमें जल्दी से इक्वेशन में पुट कर देना है. सो विच इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज? m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट. एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज, सॉरी, we need to calculate the mass for 3.011 into 10 raised to the power 25 molecules of nitrogen gas. So m is equal to n upon n naught multiplied by m. Okay, ये clear है? Yes. Now n is what? n is 3.011 into 10 raised to the power 25 divided by 6.022 into 10 raised to the power 23 multiplied by 28, which is the molar mass. Okay, इसको देखिए आप, अगर वैल्यूज देखेंगे तो ये तो 3.011 is just half of 6.022, means 6.022 is just double of this number. Now see the exponents given, 10 raised to the power 25 and 23. So there is a difference of 10 raised to the power 2. इसको ऊपर आप लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे आप इस चीज को, तो ये क्या हो जाएगा? What you will have? Okay, let me finish it first. 2 14, ठीक है, the 28. और आप 10 14 multiplied by 10 raised to the power 25 into 10 raised to the power minus 23 हो जाएगा. Do you know that? इतनी मैथ्स तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगी. उसके बाद आप क्या करेंगे? 14 into 25 minus 23, ये ऐसे हो जाएगा. और क्या आ जाएगा आपका? 14 into 10 raised to the power 2, which will be 1400 molecules of N2. This is the final answer. 1400 molecules of N2. Okay. So this is how we have calculated the number of, actually not mass, sorry, I am mistaken, 1400 gram. Sorry, I was confused. We are going to calculate mass. 1400 gram is present in what? 3.011 into 10 raised to the power 25. You can even check by yourself also, और देखिए आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा. Yes, one more question. Calculate the mass of 1 mole of FeSO4.7H2O. ये क्यों मैंने क्वेश्चन लिया? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ पर्पस ये है कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ जाए. कुछ अगर इस टाइप का आपको कोई भी मॉलिक्यूल
दिया हुआ है, ठीक है, या कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो आपको उसका मॉलिक्यूलर मास, आप कंफ्यूज नहीं हो कि कैसे निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें। इफ़ यू विल नोटिस वन थिंग, आपकी टेबल में 9th में एटॉमिक मासेस विच आर गिवन, सल्फर का हमें पता है इट इज़ 32, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1। हमें आयरन का नहीं पता है, और आयरन का एटॉमिक मास कितना है हमें बुक में नहीं दिया हुआ है। इस तरह के मासेस आपको दिए जाएंगे विच इज़ 56U, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, ओके। सल्फर का मैं लिख देती हूँ 32, और आप पॉज करिए वीडियो और अपने आप ये करिएगा और देखिए आंसर आपका सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड फॉर हाइड्रोजन एवरीवन नोज 1U, है ना। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट, विल चेंज इट इनटू मोलर मास। ये डायरेक्टली मोलर मास कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4 डॉट 7H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इन फैक्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आप देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल कलर होता है, इट हैज़ अ पेल ग्रीन कलर, और इससे ज़्यादा भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बट ये दिस इज़ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या है ये? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो इस तरह का अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, यू कैन चेक मासेस। देयर आर, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देयर इज 1 एटम ऑफ आयरन हियर, 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 प्लस 1 atom of sulfur I am finding here, 1 into multiplied by 32, right? And there are 4 oxygen atoms multiplied by 16, which is the atomic mass. Now 7H2O, ठीक है। तो हमने देखिए प्रीवियसली हम कैलकुलेट कर चुके हैं वाटर का, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 7 लिखिए ऐसे, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2 into 1 plus 2 atoms of hydrogen, 1 is the atomic mass and 1 into 16। फिर से करके देख सकते हैं if you have any doubt। तो 56 plus 32 64 होगा, चेक कर लीजिए। 16 4 प्लस 7 into 18, ठीक है। ये भी मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ, U, ठीक। 56 plus 32 plus 64 plus 18 into 7, 126 है, जस्ट चेक इट। और इसको ऐड करके जल्दी से, यस, तो मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, इट इज़ 278U, ओके। मोलर मास, इट मीन्स molar mass will be what? 278 ग्राम पर मोल, है ना। तो आपका कितना आएगा? इट मीन्स व्हाट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ FeSO4 डॉट 7H2O इज 278 ग्राम, ठीक है। This is how we can calculate the mass of such type of compounds also.